अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड हेलो देयर इज फैम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, ये है अरबईन का व्लॉग, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। लब्बैक या सकीना, लब्बैक या खामिनाई, लब्बैक या खामिनाई, दस्त खुदा है अशद, खामिनाई जवान शो, दस्त खुदा ही सरमा, खामिनाई रहबर। लब्बैक या सकीना, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामिनाई, लब्बैक या खामिनाई, दस्त खुदा ही सरमा, खामिनाई रहबर। ऑटो रशीद, हुसैन हुसैन मातम मातम को हुसैन हुसैन। तो ये है तबर्रुक अरबईन के लिए। ये पूरा एक ऑटो सिर्फ तबर्रुक का है, आप देख सकते हो। और अभी बहुत से तबर्रुक बाकी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सिर्फ एक ऑटो है और ये भी है, आप देख सकते हो। अमेरिका, मार मार इस्राइल, मार खामिनाई जवान शो, दस्त खुदा दीद शद, खामिनाई जिंदा शो, खामिनाई मिगर्दे। दूसरा साल है जो हम लोग अरबईन कर रहे हैं, और हम लोग वहाँ से एक दरगाह पर आते हैं जहाँ पर मौला अब्बास का आलम है। वहाँ पर मजलिस होती है, मातम होता है, तबर्रुक मिलता है, और फिर उसके बाद हम लोग पैदल चलते हैं अपने इमाम बारगाह की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है, यहाँ बहुत सुकून है। उस सवाब को कोई भी सफर हासिल नहीं कर सकता, जो नजफ और करबला के लिए उसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता, ना ही उस सफर की कोई चीज बराबरी कर सकती। लेकिन हम इस सफर को करते हैं, तारीफ के एहसास करते हैं। बहुत से अफराद नहीं जा पाते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि ये चीजें गलत है, सही है, अच्छी चीज है, लेकिन शरीयत और दीन को मद्देनजर रखते हैं। जब हम चले तो उसमें इस तरीके से चले कि एक दूसरे से
کہ اس کو احساس کربلا بنائیں، نہ کہ صرف ایک سیر اور تفریح اور صرف ہنسی مذاق کر رہے راستے میں، سب نہیں ہونی چاہیے، اور سب مل کے ایک ساتھ چلے تو بہت اچھا ہے، آگے مرد ہو پیچھے میری ماں بہنیں ہوں، تمام لوگ اس طریقے سے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ ایک رونق اور ایک وہ معنویت باقی رہے اس پیدل مارچ کی۔ عزیزو، زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بے پناہ روایات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے ایک حدیث میں لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین من الفضل لماتوا شوقا، اگر کوئی زیارت حسین کی فضیلت کو سمجھ جائے تو شوق زیارت سے اپنی جان دے۔ اگر کوئی حسین کی زیارت کی فضیلت کو سمجھ لے تو زیارت کی شوق میں اپنی جان دے دے۔ پھر اس کے بعد فرماتے انا زوار الحسین علیہ السلام یرجعون والملائکہ تشیعهم، جب زائر امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے اور جب تک کہ زیارت کر کے واپس پلٹ آتا ہے تو خداوند عالم کچھ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ تم آخر سفر تک اس کے ساتھ ہو۔ ظاہر حسین علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ ہوتے ہیں، تشیع کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا وَيَخْبِطُ النَّاسِ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ، اور خداوند عالم روز محشر ظاہر حسین کو ایک ایسے مقام پر رکھے گا تو جو لوگ محشور ہوں گے روز محشر، وہ سب جب ظاہر حسین کے مقام کو دیکھیں گے تو یہی کہیں گے اے کاش کہ ہم بھی ظاہر حسین ہوتے، اے کاش کہ ہم بھی ظاہر حسین ہوتے۔ تو میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت بے پناہ زیارت ہے، بے پناہ فضیلت ہے۔ سب سے پہلی فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معصوم فرماتے من زارہ بقبر الحسین علیہ السلام بحق معرفها وجب له الجنہ وغفر اللہ ما تقدم وتأخر من ذنبہ، جو حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ما غفر اللہ تقدم، وہ گناہ جو اس نے انجام دے دیے اور وہ گناہ جو انجام دے گا اسے بھی معاف کر دے گا۔ لیکن عزیزان ایمان، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چاہے جتنے گناہ کریں ایک زیارت کر کے ہم پاک ہو جائیں گے، نہیں عزیزو، یاد رکھیں کہ بلندیوں پر پہنچنا کمال، بلندیوں پر پہنچنا کمال نہیں ہے، بلندیوں پہ ٹھہر جانا کمال ہے۔ اسی طریقے سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا، اپنے گناہوں کو معاف کرا دینا، یہ معیار نہیں ہے۔ زیارت کر کے واپس آنا اور وہی پاک اور پاکیزہ زندگی گزارنا، یہ کمال ہے۔ جب زیارت کے لیے جائے آپ پاک ہو گئے۔ معصوم فرماتے ہیں ظاہر حسین جب زیارت کرتا ہے تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی ماں کی شکم سے نکلا، بغیر گناہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہی پاک اور پاکیزہ زندگی گزارنا، یہ کمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت ظاہر حسین کی کیا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ ظاہر امام حسین اگر زیارت کے درمیان مر جائے تو ائمہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ کون؟ ائمہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث و روایت کہتی ہے ما من عہد ان یموتوا بظاہر الحسین علیہ السلام فی عہد الارض حضر رسول اللہ وعلی وفاطمہ الحسن والحسین ویصلون علیہ۔ ظاہر حسین زیارت کے درمیان جہاں پر بھی مر جائے تو اس کے پاس رسول اللہ بھی حاضر ہوتے ہیں، امام علی بھی حاضر ہوتے ہیں، بی بی فاطمہ بھی حاضر ہوتی ہے، امام حسن اور حسین بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے جنازے پر صرف حاضر ہوتے نہیں، وہ یصلون علیہ، اور یہ تمام اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔
नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं। अच्छा कोई गया ज़ियारत के लिए और वापस आ गया, मरा नहीं, तो कहा कि जब वापस आओगे तो उसकी भी फजीलत है। कहा तीसरी फजीलत ये है कि ज़ाहिर हुसैन जो ज़ाहिर है जहां पर भी मर जाए, किसी भी जमीन पर, किसी भी खित्ते में, अमलेर में, भुसावल में, कहीं पर भी मर जाए, तो खुदावंद आलम उसकी कब्र को फरिश्तों की जियारत का बना देता है। खुदा उसकी कब्र को फरिश्तों की जियारत का बना देता है। अभी हम जियारत के लिए आए, यानी अमलेर वालों को क्या है, इस बाबा के मकाम की जियारत का बना दिया अमलेर वालों को। तो अजीजों, हमारा जाहिर बनना और इनके यहाँ पर आना और है, और मलाइका का किसी कब्र पे आना और है। तो खुदावंद आलम जाहिर की कब्र को मलाइका की जियारतगाह बना देता है। कहा यही भी हदीस में मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना ज़व्वार हुसैन तमूतु बिअय्यि अर्ज़िन गफर अल्लाहु ज़ंबहु। फिर उसके बाद कहते हैं वयुअख्खरल मलाइका अलल क़ब्र इला यौमिल क़यामा व यस्तग़फिरून लहू। खुदावंद आलम मलाइका को हुक्म देता है कि इसकी कब्र पे हाजिर हो जाओ, और इसकी कब्र पे हाजिर 1 साल 2 साल नहीं, इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक के। इनका काम क्या है, व यस्तग़फिरून लहू। मलाइकों को हुक्म देगा कि इसकी कब्र पर जाओ और इसके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करो, इसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करो। ये तीसरी फजीलत, खुदावंद आलम ज़ाहिर की कब्र को फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देता है। फिर चौथी फजीलत क्या है, चौथी फजीलत ये है कि जिसके लिए हर कोई परेशान है, खुदावंद आलम ज़ाहिर के रिज़्क़ को वसी कर देता है। वयजलिबुर रिज़्क़ल अब्द ज़ाहिर, खुदावंद आलम ज़ाहिर के रिज़्क़ को वसी कर देता है। फिर उसके बाद वो वला हाजतहुम, खुदावंद आलम ज़ाहिर के तमाम हाजतों को पूरी करेगा। तमाम हाजतों पर शर्त ये कि क्या होनी चाहिए, जायज़ हाजत होनी चाहिए। अज़ीज़ान, बहुत सी फजीलतें हैं, लेकिन याद रखिए तमाम फजीलतें आया हर ज़ाहिर के लिए है, नहीं, शराइत हर चीज़ की कबूलियत के लिए शराइत है। तो लिहाजा ज़ियारत की कबूलियत की शराइत सबसे पहली शर्तों में पहली शर्त ये है कि जब आप ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाए तो उस पैसे से जाए कि जो हलाल पैसे की ज़ियारत खुदा कबूल करता है। खुदा ने साफ अल्फाजों में कहा, हर वो चीज़ जो गैर हलाल तरीके से मुझ तक पहुँचे मैं उसे कबूल नहीं करता हूँ, ना वो मुझ तक पहुँचता है। लिहाजा अगर कोई हराम पैसे से ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जा रहा है तो ज़ियारत नहीं है, सिर्फ एक सैर और तफरीह। मेरे जीरो बेपनाह ज़ियारत है, फजीलत है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक फजीलत बयान करूँगा इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद रब्बी मसाइल। जनाब इब्राहीम सबसे अफजल नबी पैगम्बर अकरम के बाद पहली सूरों में उनका जिक्र आया कि जिन्होंने खाने काबा को तैयार किया, जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल। जब खाने काबा को तैयार किया, तैयार करने के बाद जनाब इब्राहीम से खुदा ने कहा कि अब लोगों को आवाज दो, किसके लिए, कि लोग हज के लिए आए। ऐ इब्राहीम, लोगों को हज के लिए बुलाओ, लोगों को हज के लिए आवाज दो। तो लिहाजा जिसने सदाए इब्राहीमी पर लब्बैक कहा वो हज के लिए जाता है। भाई तब एक सदा इब्राहीमी है, वो अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन। ऐ इब्राहीम, लोगों को हज के लिए आवाज दो। अब जनाब इब्राहीम ने आवाज दी, और जिसने जनाब इब्राहीम को आवाज दी और लब्बैक कहा तो वो हज के लिए जाता है। एक सदाए इब्राहीमी है और एक सदाए हुसैनी है। हल मिन नासिरिन यंसुरना, जिसने सदा इब्राहीमी पर लब्बैक कहा वो ज़ियारत के लिए जाता है। दोनों हुज्जते खुदा है, दोनों नुमाइंदे खुदा है, लेकिन दोनों में एक फर्क जरूर पाया जाता है। कहा क्या फर्क पाया जाता है? जिसने सदा हुसैनी पर लब्बैक कहा वो ज़ियारत के लिए जाता है, जिसने सदा इब्राहीमी पर लब्बैक कहा वो हज के लिए जाता है। लेकिन दोनों में एक फर्क जरूर पाया जाता है, जिसने सदा
इब्राहिमी पर लब्बैक कहा और हज के लिए गया तो एक हज के बदले एक हज का सवाब मिलेगा। लेकिन जिसने सदाए हुसैनी पर लब्बैक कहा और जियारत के लिए गया हर हर कदम पर 70 हज्जे मकबूला। لبیک یا حسین जिसने सदाए हुसैनी पर लब्बैक कहा तो रिवायत के जुमले हैं ज़ाहिर के हर कदम पर हज ज़ियारत का नहीं ज़ाहिर के कदमों के बदले अल्लाह 70 हज्जे मकबूला का सवाब देता है और 70 उम्रे मकबूला का सवाब देता है। तो हज का सवाब नहीं देता है, उस हज का सवाब देता है जो कबूल शुदा है, जो कबूल शुदा है, यानी उस हज का सवाब जो कबूल शुदा है। ये ज़ियारत इमाम हुसैन का सवाब है, लेकिन क्या बेहद के मारिफत है, इस शर्त के साथ कि उसकी मारिफत के साथ उसकी ज़ियारत। आज हमारा माहौल में तो वहाँ रह चुका हूँ, गया भी हूँ वक्तों के साथ, तो वहाँ पर रोज़ों में कम वक्त गुजरता है और बाजारों में ज्यादा वक्त। ज़ियारत के लिए जाते भी है तो एक दरवाजे से निकल कर दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं, यही सोचते हैं यही ज़ियारत नहीं। तो वक्त दे वहाँ पर जब पहुँचे इंसान रोज़ों में वक्त दे, रातों को वहाँ जागे, अपने इमाम से गुफ्तगू करे, ऐसा नहीं कि बस जाए और ज़ियारत करके फौरन निकल जाए उसके बाद बाजार ज़ियारत इमाम हुसैन की फजीलत। लिहाजा अपना कीमती वक्त जब वहाँ पहुँचे हैं तो अपना करीब ज्यादातर वक्त कहाँ दे, रोज़ों में। और इंशाअल्लाह खुदा जाना वक्त है कि हम सबको वहाँ पर पहुँचाए और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मेरे अज़ीज़ों और अभी मजलिस मातम हो गया है। अभी यहाँ पर तबर्रुक तकसीम हो रहा है, सब में यहाँ पर सब ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे पैदल इमाम बारगाह की तरफ। यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है। यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग
आओ हुसैन, चलो। गाइस देखिए ये बच्चा पोटलू है इसका नाम, एमपी से आया है और ये तबर्रुक बांट रहे हैं। हाँ दो। आपको सलामत रखे। आप भी आइए मोला दस्त खुदा हया शुद, दस्त खुदा हया शुद, अमेरिका और इजराइल। करबो भला दादा चलो करबो भला करबो भला चलो करबो भला। चलो चले करबला, आओ चले करबला, चलो करबो भला, करबो भला, करबो भला, दादा चलो करबो भला, करबो भला। ऐसा काम है मेरी आवाज पे लबैक पुकारे आओ, चले आओ। मेरे बाबा भी है मेरे गम में देखे, तुम नहीं भूले तो मैं भी नहीं भूला तुमको, या चलते हुए खंजर में भी रखा आओ, चले आओ चले आओ, मेरी आवाज़ पे लबैक पुकारे आओ। तुम जो लहराते हो हाथों में ताए परचम, तुमको मालूम है हो जाता है ताज़ा मेरा गम, याद आता है मुझे मेरे बाबा कलम, जाने से टूटा मेरे बच्चों से सितम, मेरे अब्बास की जागीर सजाने हाजिरी रो गए अब्बास खा गए आओ, चले आओ चले आओ मेरी आवाज़ पे गरीब ज़हरा सलाम 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 है गरीब ज़हरा, सलाम सलाम है गरीब और वली खुद मोहम्मद सा नबी, क्या नबी और वली खुद मोहम्मद सा नबी, तेरे रोज़े पे तुझे करता है सलाम, सलाम 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 है गरीब ज़हरा, सलाम 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 है गरीब ज़हरा।
आती है बुलाली करबला 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 लबैक या हुसैन लबैक या खामनाई लबैक या खामनाई कोसर है उनका दुश्मन अख्तर है कोसर है उनका दुश्मन अख्तर है अमेरिका और इसराइल अमेरिका और इसराइल सुभान अल्लाह लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन हुसैनियत जिंदाबाद करबला 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 पूरी करो अब दुआ करबला करबला अब दुआ करबला करबला लब्बैक या हुसैन करबला करबला तुम्हें तो चप्पल और नाचे बचो मरो करबला करबला ये कमांडर है यहाँ के मोहम्मद मोहम्मद भाई कमांडर है और सकलेन भाई भी और शुजा 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 भाई भी यहाँ के कमांडर है और जुनेद भाई भी कमांडर है लब्बैक या हुसैन तो गाड़ी है या बचो किलोमीटर चलाए दिखा बारे हम बचत कर सके कमांडर అలాగే मैं तो काफिले केड़े पूछो काफिले से सारे चुने बच्चा नहीं से प्यार पतो जिंदगी जो ये पर बराबर है सलमान कभी में रोड इधर 4000 का गांव में क्या बोल रहा है गाड़ी साइड में चला आगे लो लब्बैक या लब्बैक या अब्बास लब्बैक या अब्बास आ रही है सदा हर एक जर्रे से मातम की आ रही है सदा अनसवार हुसैन इब्न अली अना ज़व्वार हुसैन इब्न अली अना ज़व्वार हुसैन इब्न अली अना ज़व्वार हुसैन इब्न अली अनसवार हुसैन इब्न अली अना ज़व्वार हुसैन इब्न अली सलाह करबला है ज़बा पे बिस्मिल्लाह सरदार ने मदद है करे या हुसैन सारल्लाह सफर कबूल करे या हुसैन सारल्लाह हम लोग अज़ादार हुसैन अरे अल्लाह हम लोग तरफदार हुसैन अरे अल्लाह हम लोग अज़ादार हुसैन अरे अल्लाह ऐ मौला मेरे नौकर है सदा ज़व्वार तेरे अना ज़व्वार हुसैन इब्न अली अना ज़व्वार हुसैन इब्न अली अना ज़व्वार हुसैन इब्न अली सलाम इसका के हमको बुला लिया मौला सलाम इसका के दिल में बसा लिया मौला सलाम जल्दी रावण तुम अरे मुल्ला करम अल्लाह हम सारे तफसीराने अज़ा अरे मुल्ला ऐ मौला मेरे ए आका मेरे नौकर है सदा ज़व्वार तेरे अना ज़व्वार हुसैन इब्न अली अना ज़व्वार हुसैन इब्न अली
सबके आंसू है रवा, सबके लब पर है फुगा, है दिले या फातिमा या माज़लूम. याद पूरी करो अब दुआ, करबला करबला पूरी करो अब दुआ, करबला करबला मौला बुला ले हमें, करबला करबला मौला बुला ले हमें, करबला करबला इज्जतों का रास्ता, करबला इज्जतों का रास्ता, करबला. लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन. अब दुआ, करबला करबला नजर करम हो यहाँ, करबला करबला नजर करम हो यहाँ, सीधा रास्ता, करबला करबला इबादतों का ताइबा, करबला करबला इबादतों का ताइबा, करबला करबला. मेरे नसीब में क्या करबला नहीं मौला, मेरे नसीब में क्या करबला मेरे नसीब में क्या करबला. Una poco de nakafila. नसीब में क्या करबला नहीं वाला. मैं चल रहा हूँ जुलूसों में अरबईन के दिन, है ये भी आपके ही किसका खबर, लेकिन नजफ से करबला पैदल, नजफ से करबला पैदल गया नहीं मौला. मेरे नसीब में क्या करबला नहीं मौला. नसीब मन में बहुत गई कुछ भी नहीं है दामन में, सिवा तुम्हारे किसी से, सिवा तुम्हारे किसी से मौला. मेरे नसीब में क्या करबला नहीं मौला. एक बार करबला वतन में मर जाऊं, और इंतजार कब है, और इंतजार कब हौसला नहीं मौला. मेरे नसीब में क्या करबला नहीं मौला. एक नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या चलते चलते अगर इसकी खिदमत करो, दुआएं लो, जब करम तुम दुआओं का ये सिला होगा, सफरे इश्क करबला होगा, देखना जल्द मौजिज़ा होगा. सा अगर नजर आए उसको पानी पिलाओ तुम, जल्द मौजिज़ा होगा, सफरे इश्क करबला होगा.
علی حیدر کرار 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 یا علی یا علی پیچھے آگے یا علی اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا وظہورا